Sorry, friends. Good morning again. I'm Dr. Mukesh Parikh, and kindly show your presence so that we can start the class. Sorry, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होने की वजह से again good morning. Let us start the session again. We are coping with all the problems, during the COVID crisis. COVID is showing us so many different things in life. Okay, so in today's class, I was talking about aspects of postmodern fiction, and now, without beating about the bush, directly coming to the point, that there are so many aspects of a postmodern fiction, and the first important one is metafiction. Okay, in yesterday's class we talked about metafiction. That metafiction means a story within story. Clear? So and I was about to tell you the names of different novels. The first one is John Barth. Yeah, frame narrative. Huma Khan, I was talking about frame narrative, or oblique narrative means a story within a story. For example, this Heart of Darkness, if you remember. In Heart of Darkness, there is, we have a storyteller, then he starts talking about another story. Okay, so there is a story within a story. Though Heart of Darkness is a modernistic fiction, but still we believe that, for example, the story. Write down one very, very important name that will make you clear about this point. Write down Italo Calvino. Write down the name Italo, Italo Calvino. This is a very famous name. Italo Calvino's If on a Winter's Night Traveler. ये उनका एक नॉवल है. This is a cult novel. This is very famous, friends. Italo Calvino. Yes, लिख के बताते जाइए, because I should know that you are very much present and writing. Italo Calvino's famous novel, If on a Winter's Night Traveler. That person who is, I think, a priest, is a guest in someone's family, and then to entertain the host family, he starts telling the story. Then he keeps changing the mode or the trend of the whole story by looking at the different people. Clear? So there are so many stories in the same novel. Okay, so If on a Winter's Night Traveler, Italo Calvino's. This is a cult novel. Cult in the sense, one who establishes a culture, or say a particular genre. That is called cult novel. Clear? So and before this, अच्छा एक बार मुझे बोल के बताइए, हालांकि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा, बोल के बताइए मैंने कौन से नॉवल का और राइटर का नाम लिया. Italo Calvino. Italo Calvino's novel's name is If on a Winter's Night Traveler. It was published in 1979. It is the most famous, one of the most famous novels of postmodernistic aspect. मैंने 3 बार बोल दिया है. Italo Calvino's novel का नाम लिखिए. Write down the name of the novel. If on a Winter's Night Traveler. If on a Winter's Night Traveler. It was published in 1979. There are different stories, within stories. There are more than 7-8 stories. Clear? And what the other names we took before the earlier stream was disturbed. That was John Barth. John Barth के novel का नाम था Lost in the Fun House. Lost in the Fun House. Okay, John Barth's novel. Second one, Thomas Pynchon's The Crying of Lot 49. ये सब आपको एग्जाम में दिखेंगे novels. The Crying of Lot 49. And the third one was Kurt Vonnegut's Slaughterhouse 5. Okay, so now I will not. अच्छा, एक important aspect ये होता है कि ये writer क्यों, why they are writing metafiction, because these writers create stories within stories and don't pay much attention to what is real or authentic.
Okay, and yesterday I told you that in a postmodern fiction there is a great question mark on reality, and they have their own notion of truth and reality and verisimilitude. ये भी शायद मेरे मुंह से एक नया टर्म निकल गया है, verisimilitude. How many of you are aware about this term verisimilitude? I'll be just talking about this verisimilitude also, but now I'll shift to the second aspect of metaphysical postmodern fiction. Write down, that is pastiche. लिखिए PASTICHE, pastiche. Pastiche क्या होता है? I think ये नया टर्म है कई स्टूडेंट्स के लिए. Have you ever heard or come across the term collage? Are you aware about the term collage? COLLAGE, collage. If you are aware about collage, kindly tell me. Kindly write yes, so that I don't explain it in detail. The second important aspect of a postmodern novel is pastiche, and to explain pastiche, I would like to talk about collage. Are you aware about the term collage? Okay, I'm getting no answer. There is no answer on my screen, but let me tell you, like, what is collage actually. Collage means, you know, something which is already prepared from, like, suppose a theme is given to you, and based on that theme you cut different photographs or pictures from different sources, and then you cut paste and create a particular message, you know, by cuttings and say already given headlines of newspaper or from magazine and all. Yeah, so blending of so many things. Dipendra Chand has given us a very good word. So collage, clear? When I was in college, there were competitions of collage making and all. So we used to have so many magazines and newspaper cuttings with us, and then no, template is not collage. I'm sorry, Madhusudan. And then suppose they give us a topic like women empowerment. Okay, then from the newspapers and magazines we used to cut different photographs, you know, which suits our theme, and then we used to paste, you know, accordingly, and then we used to prepare a kind of chart. कोलाज तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बनाते हैं फोटोग्राफ्स का घर में मेरे ख्याल से, but that is not exactly collage. Collage is actually a very artistic thing, clear? So but if you are writing through intertextuality, you just take some part from somewhere, another part from somewhere, some character from somewhere, okay, and then you mix and, you know, meddle, you just create a kind of medley, you know, then we call it pastiche, clear? So a simplest definition of pastiche is a kind of collage in words. Write down. So suppose you want a very simplest definition from me, that pastiche means a collage in words. Okay, and then what it does, it links texts that do not start from the beginning, but they already exist. Like when we paste in a collage, the photographs are, you know, they already exist somewhere, clear? So now there is a great difference between parody and pastiche. Write down. They can ask you this difference because sometimes we have the say a kind of, you know, creativity is demanded in making a pastiche, clear? But in parody, parody means, how many of you are aware about the term parody? Because parody means you're making fun of already existing thing, you're changing the words. जैसे आजकल गानों की parodies बहुत famous हैं. Okay, suppose there is a particular dance form or a particular dialogue, then, you know, you do a parody of a particular dialogue. Okay, so sometimes they ask you a question about what is the difference between a pastiche and parody, because pastiche is also the usage of, you know, earlier existing material. ठीक है, और parody में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि it comments, parody it comments. राइट डाउन, parody का heading डाल लीजिए, एक तरफ parody लिख लीजिए, एक तरफ pastiche लिख लीजिए. Clear? On the side of parody, write down that it makes fun. Okay, it makes fun, or say it pokes fun, it comments. Clear? Parody. And towards pastiche, write down that it adopts the things as such. Pastiche adopts things as such, does not poke fun and does not comment. Okay, so it celebrates anything,
which is already existing. Clear? It does not use that material to make fun of or say a kind of commentary. तो देखो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, पोस्ट मॉडर्न म्यूजिक, पोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग, देयर आर डिफरेंट areas where this postmodern term is used these days. Okay, so postmodern is anything where already existing material is used in a very creative sense. लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, हो सकता है वो टफ क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि जरूरी नहीं है that every writer, every critic looks in a very positive way towards postmodernism. हमारे पास ऐसे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं जो postmodernism, though they are postmodernistic writer or they are critics of postmodernism, but they don't look at postmodernism in a very positive or favorable manner. Clear? लेकिन अभी हम because we are just starting studying it कि अगर आप suppose आप Midnight Children, I was talking about few moments back, Midnight Children को अगर हम पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि Midnight Children के डायलॉग्स तो कोई भी लिख सकता है. Okay, because that is not original art, because the things are already existing, the characters have been created in such a manner like they seem to be parody of already existing characters and all. लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हल्की सी क्रिएटिविटी होती है क्योंकि आप किस तरह से उसको जोड़ रहे हो. ओके, बट कुछ क्रिटिक्स होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि इफ द थिंग्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर समवेयर, ओके, एंड देन यू आर कटिंग एंड पेस्टिंग इट, देन वेयर इज दैट क्रिएटिविटी. क्लियर? तो ऐसा आपको कई बार थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा. चलिए आगे लिखिए. इट इज नॉट फेवरेट ऑफ एवरी पोस्ट मॉडर्न राइटर. Pastiche is not used by every postmodern writer. Okay, I remember this Frederick Jameson. Write down Frederick Jameson. आपने फ्रेडरिक जेमसन का नाम सुना हुआ है? FREDRIC JAMESON. फ्रेडरिक जेमसन पे लगातार नेट में एक क्वेश्चन आता है. He is the one who has been writing copiously on cultural studies also. Clear? तो जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं that becomes a part of cultural studies also. मैं थोड़ा सा cultural studies पे बोलता हूँ आज आपको, though from tomorrow I'll start series on cultural studies also, ताकि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएं. That cultural studies किस चीज की बात करती हैं? Cultural studies start talking about anything which is popular. Clear? And they celebrate anything which was earlier looked down upon. Clear? So ये नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं मधुसूदन जी, मैं फ्रेडरिक जेमसन के बारे में ये बात कर रहा हूं कि फ्रेडरिक जेमसन इज ऑल्सो अ राइटर हु हैज टॉक्ड अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म इन डिफरेंट बुक्स, बट ही डज नॉट लुक इन अ वेरी फेवरेबल मैनर टुवर्ड्स द एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो पास्टिश आता है, फ्रेडरिक जेमसन उसको पसंद नहीं करते हैं. वो कहते हैं, उन्होंने, लिखो, एक टर्म देता हूं आपको, लिखो. फ्रेडरिक जेमसन फेमसली कॉल्ड, write down, Frederick Jameson famously called pastiche pointless and empty. लिख लीजिए इस लाइन को. They will ask you this quotation like who said that. Frederick Jameson famously called pastiche pointless and empty. Okay, I was just about to talk फ्रेडरिक जेमसन का नाम आता ही आपको क्योंकि आप पिछले 2 या 3 नेट के पेपर उठा के देखिए, दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग अस क्वेश्चंस ऑन फ्रेडरिक जेमसन. क्लियर? अच्छा, अब एक नॉवल का नाम लिखिए, राइटर का नाम लिखिए, डेविड मिशेल. DAVID, डेविड मिशेल, MICHELL. डेविड मिशेल इज वेरी फेमस. उनका नॉवल का नाम है क्लाउड एटलस. मैंने कल अपने फेसबुक पे एक गार्डियन का एक आर्टिकल शेयर कर दिया है, बिकॉज Cloud Atlas is very famous for using this pastiche and metafiction, in it. And there are 6 particular genres the writer has been using. उसने 6 तरह के genres को mix कर दिया है, जिसमें mystery novel भी ले लिया है उन्होंने, cyber punk novel ले लिया है, science fiction को ले लिया है उन्होंने, period drama को ले लिया है. ऐसे करके बहुत सारी चीजों को उन्होंने इंटरमिक्स करके and then he created a novel. उसका नाम है Cloud Atlas. Okay? So, एक नया नाम आपको मेरे मुंह से सुनने को मिला. You come to know about a new writer, David Michel. David Michel is again not famous, with many students because, as I told you, that it depends upon your professors. If they read these kind of things and they talk about in the class,
because classrooms are not meant to discuss just what is there in the course and syllabus. Okay, a teacher can drag his class or her classroom, class or students towards something which is strewn around that particular writer also. Clear? So डेविड मिशेल के नॉवल का नाम लीजिए, बताइए। ये 2004 में पब्लिश हुआ था, क्लाउड एटलस। क्लाउड एटलस में डिफरेंट जॉनरेज हैव बीन मिक्स्ड। क्लियर? एंड डिफरेंट जॉनरेज मीन टू से दीज आर पास्टिशेस। पास्टिशेस मैंने बताया था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग। क्लियर? सो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पोस्ट मॉडर्न नॉवल। ओके, सो नाउ यू आर अवेयर अबाउट। मैं थोड़ा सा वापस बोलूं उस चीज के बारे में। मेटाफिक्शन कल मैंने आपको बताया था। मेटाफिक्शन जो वर्ड है, हिस्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन टर्म किसने यूज किया बताइए? सपोज चलो मैं कल की क्लास में से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप में से, आपको हिस्टीरियोग्राफिक मेटाफिक्शन किसने यूज किया बताइए? लिंडा हचियन, कैनेडियन राइटर। आपके तुरंत जवाब आना चाहिए था। Okay, and she says that in a metafiction, historiographic metafiction, there is a fiction, theory, and this history. They are all mixed together. Clear? ये बात हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Okay, now come to this next writer. डेविड मिशेल का नाम ले लिया आपने। अब एक नेक्स्ट राइटर का नाम लिखिए, अर्नेस्ट क्लाइंस। अर्नेस्ट, ERNEST, अर्नेस्ट क्लाइन, CLINE। Ernest Cline's work Ready Player One, Ready Player One 2011 में पब्लिश हुआ। Ernest Cline's, CLINE, Ernest Cline's work Ready Player One, बड़ा अजीब नाम है, Ready READY Player One। Okay, 2011, it was published in 2011। Okay, so two names I've taken, but I don't restrict myself to the two names. There are different works strewn around literature where, if you go in depth, you will search, जिनको study material मिला है, जो भी paid student हैं जिन्होंने study material ले रखा है। अभी few days back I sent them a particular long PDF of 426 pages। आप उसको प्लीज चेक कीजिएगा। ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट को वो ऑलरेडी मिल चुका है, उसमें आप लोग पोस्ट मॉडर्निज्म स्टडी कर लीजिएगा। बट जिनको आई हैव सेंट द मटेरियल राइट नाउ, अभी 2 या 4 दिन पहले ही, प्लीज उसमें जाके देखिएगा। देयर आर डिफरेंट नेम्स एंड ऑल दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन टॉक्ड अबाउट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, दैट इज मैक्सिमलिज्म। मैं बार बार कह रहा हूं कि द स्टडी मटेरियल you have got from me, if you devote your time, your nights and days in the coming few days are very very important। एक वीक है आपके पास, आप उसको लगातार पढ़ते रहते हो तो आई बेट कि आपका नेट क्या JRF भी क्लियर हो जाएगा। बट ये है कि यू हैव टू गिव टाइम टू देम। ऐसे नहीं होता है कि यू जस्ट टेक द मटीरियल। चलिए, मैक्सिमलिज्म। शत्रुपा, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं आज आपको भेज दूंगा। आई एम सो सॉरी, मैं इतना बिजी रहता हूं सारे दिन पढ़ने में, मैं भूल जाता हूं। काइंडली रिमाइंड मी आफ्टर द क्लास शत्रुपा, आई विल सेंड इट टू यू, डोंट वरी। ओके, मैक्सिमलिज्म, राइट डाउन। देयर आर 2 टर्म्स, मैक्सिमलिज्म एंड मिनिमलिज्म। पहले आपको ये 2 टर्म्स क्लियर कर देता हूं। मैक्सिमलिज्म क्या होता है? अब ऑब्वियसली द टर्म इटसेल्फ टेल्स अस दैट maximum, it's related to maximum, and minimalism mean to say bare things, bare necessary things are there. So what the most important other aspect which is quite visible, जैसे कि हम लोग क्लास में we have been talking about Midnight's Children today, and as I told you that the novel is quite bulky, and if you read that novel you come across thousands of characters, thousands of situations, different timelines. Okay, वैशाली आप मुझे एक बार, आई एम सो सॉरी वैशाली उदावत, कई बच्चों की फीस ड्यू है अभी, उन्होंने मुझे कुछ फीस दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, तो आप उस कैटेगरी की जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से ग्रुप बना रखा है, सो काइंडली टॉक टू मी ओके रिगार्डिंग दैट, आई एम सो सॉरी। चलिए मैक्सिमलिज्म की बात करते हैं। मैक्सिमलिज्म एंड मिनिमलिज्म, 2 चीजों की हम बात कर रहे हैं अभी। मैक्सिमलिज्म का मतलब सो मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, ओके, एंड मिनिमलिज्म में क्या होता है? Minimalism, it stands for something which is quite neat, tidy, small. Audio is off. Do you think my audio is off, dear friends? Can you hear me? Hello? Can you hear me? First of all, tell me, can you hear me? Because somebody is complaining that my audio is off.
Do you think my audio is off? Hello? Can you hear me? Hello, can you hear me? Okay, Suresh is saying that they can hear me. Then I think there must be something wrong, with your audio, dear friend. Okay, Chali, I'm so sorry for the inconvenience. Kundan is saying I'm quite loud. Okay. Okay, those who want to get the study material, kindly let me inform them that it's paid, and I just give study material to those students who take admission in my classroom. Okay, come back. So minimalism के बारे में बात कर रहे थे कि minimalism stands for something which is neat, tidy, small, low key. लो की लिख लीजिए, एक टर्म है LOWKEY. लॉकी की बात नहीं कर रहे सब्जी की. इट्स लो की मीन्स yeah, I will upload this video on YouTube, don't worry. Okay, but suppose we talk about the opposite of this minimalism, then it's maximalism. It means everything is created on the grand scale. Instead of being neat and clean, there are different episodes created which they merge in themselves, and then they create a kind of a confusion, chaos. That I will be talking about. So maximalism is also one of the other aspects. अच्छा, एक इसको मैं let me explain it to you that मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट्स आर देयर, पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट जो होते हैं, ये द ह्यूमन रियलिटी को बहुत नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, एंड दे कम आउट ऑफ दैट आइडियल ऑफ आर्ट एंड फिक्शन जो एरिस्टोटल ने कहा है. एरिस्टोटल सेज दैट art is something like a kind of imitation of reality, and it can be made better. Our reality can be made better, but as you all are aware that actual reality of human being is stuffed with chaotic things. ओके, हम लोग जो है लाइफ में 1000 लोगों से मिलते हैं, हमारी मेमोरी जो है वो हमेशा फिल्ड रहती है. जब भी हम चुपचाप बैठते हैं, thousands आइडियाज कीप कमिंग टू आवर माइंड. सो दिस इज नॉट ऑलवेज लीनियर टू द पॉइंट. Okay, and what is originality? We cannot say that we are original people. Our ideas are not our ideas only. Our ideas are always affected by the ideas of the others. Okay, so postmodern writers, they want to hit the nail. They try to pinpoint, they try to understand the thin line between art and life. I hope you understand this point clear, and that's why हमारी जो लाइफ होती है, आपने देखा होगा कि wherever we are present, that particular space and our psyche, it is one. Okay, but the place where we were earlier, few moments back, that also is there. It is always in our memory. Clear? So our memory and our present, they both of them keep clashing all the time. Okay, so this clash is shown by the usage of maximalism. जैसे आप मिडनाइट चिल्ड्रन का एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए देता हूं बिकॉज इट इज केप्ट इन द कोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, एंड स्टूडेंट्स आर वेल वर्स्ड विद दिस नॉवल कि इसमें देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स. ओके, एंड देन देर आर सो मेनी एपिसोड्स, थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स आर देयर. ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कि अ काइंड ऑफ इंटरटेक्चुअलिटी इज मिक्स्ड. ओके, एंड मेटाफिक्शन और इंटरटेक्चुअलिटी को कहीं ना कहीं आप एक जैसा ही पाएंगे. ओके, अब इसमें एक राइटर का नाम लिखिए आप, जेडी स्मिथ, ZADIE, जेडी स्मिथ. ओके, ये एक बहुत फेमस नॉवल है इनका, व्हाइट टीथ, पब्लिश्ड इन 2000. राइट डाउन जेडी स्मिथ. अच्छा, केवल ऐसे स्टूडेंट्स मत बनो जिसको अपन लकीर के फकीर बोलते हैं, क्रैमिंग काइंड ऑफ लॉट, जो केवल नॉवल के नाम और उन सब चीजों को पढ़ाई करने के लिए आते हैं. नो नो नो, आपको इस तरह की स्टडी करनी है जिसमें आपको इंटेलिजेंट भी बनो फिलोसॉफिकली. कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निस्टिक नॉवल, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज क्वाइट नियर टू वंस लाइफ. हमारी लाइफ ऑर्डर्ड नहीं है. Our life is not ordered, our life is not unique, our life is not we are not unique, we are the shadows of our parents. आप कभी देखिएगा,
हमारे अंदर there is a glimpse of sometimes father, sometimes mother, sometimes बुआ, sometimes मामा. ओके, तो हम लोग जब खुद ही एक नहीं है, तो how can we say that the fiction or say the art form which we create, because art should reflect reality. Okay, so White Teeth जो है वो जेडी स्मिथ का लिखा हुआ नॉवल है, and in this the writer has created 3 generations of 3 families. और मैंने हैरी पॉटर का नाम सुना होगा आपने. हैरी पॉटर देख लीजिए, देयर आर सो मेनी डिफरेंट सीरीज एंड thousands of characters are there, and magic realism is used in that. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया इन द वेरी बिगिनिंग. पहले लिखिए आप मैजिक रियलिज्म. मैजिक रियलिज्म आप इसे ऐसे मान लीजिए, दैट इज द 4th एस्पेक्ट ऑफ दिस पोस्ट मॉडर्न नॉवल. ओके, राइट डाउन मैजिक रियलिज्म. लिखिए मैजिक रियलिज्म. ये फ्रेंड्स रो ने कॉइन किया था टर्म, FRANZ, फ्रेंड्स ROH, रो. We are pastiches, Shatrupa कह रही है. Yes, very good understanding. Okay, Franz Roh in 1925, an German art critic he was. He created this term, and a very simple explanation I have, that the supernatural is presented as mundane, and the mundane is presented as supernatural or extraordinary. मतलब extraordinary को सिंपल बना के प्रस्तुत किया जाता है, एंड द सिंपल थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर. क्लियर? सो दैट मिक्सचर ऑफ दीज 2 थिंग्स इज कॉल्ड मैजिक रियलिज्म. एक और चीज आपको समझाता हूं. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ? अच्छा, आर्यन मित्र कह रहे हैं मैं दोबारा रिपीट करूं. मैजिक रियलिज्म की टर्म लिखिए. इट इज द सुपर नेचुरलिज्म इज प्रेजेंटेड एज मंडेन. The supernaturalism is presented, supernatural is presented as mundane. Mundane मतलब ordinary, day-to-day life, something which is not very special. Clear? So the supernatural is presented as mundane, and the mundane as supernatural. अच्छा बताइए, हमारा जो our ultimate interest is always in miracles and supernatural and the fantastic world. We never want to live in our reality, but that is the strange life of Walter Mitty. किसने पढ़ा है The Strange Life of Walter Mitty? किसने पढ़ा है बताइए. ये अमेरिकन एक शॉर्ट स्टोरी है. जिनको शॉर्ट स्टोरी की PDF मिली है, उसमें आई हैव मेंशन्ड दिस स्टोरी ऑल्सो. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूं. मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सुना है आपने? क्या आपने कभी ये फ्रेज सुना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने? बताइए, हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस फ्रेज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने? ये व्हेन हम लोग छोटे थे, 30-35 साल पहले एक सीरियल आया करता था, और सोनिया गांधी ने एक बार वाजपेयी जी को पार्लियामेंट में इस चीज के लिए थोड़ा सा उनका शी मेड फन ऑफ वाजपेयी जी, बिकॉज वाजपेयी जी यूज्ड टू क्लोज हिज आईज व्हेन ही यूज्ड टू स्पीक, एंड ही यूज्ड टू विंक हिज आईज एट टाइम्स लाइक. तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने लिखिए आप लोग. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. दैट हैज बीन अ सीरियल based on the life of this strange life of Walter Mitty. Clear? उसमें क्या होता है, there is an ordinary character, and that ordinary American character, he wherever he goes, he falls into dreams wherever. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैं बात करने लगूं, और बात करते करते अचानक से I go in my dreams. Okay, so then the dream comes in reality, and reality becomes dream. वैशाली कह रही है इसने सुना है. दैट्स ग्रेट. मुंगेरी लाल के हसीन सपने. अच्छा, एक बात बताइए, हमारी लाइफ क्या है? व्हाट इज अवर लाइफ? हम लोग लाइफ में, अब मुझे नहीं मालूम दैट वेदर यू फॉल इन फैंटेसी और नॉट, बट दैट हैज बीन अ कांस्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. एवरी टाइम whenever I sit anywhere or stand and talking, I have my own fantasy world. I'm not talking about fantasy about the dream girl and all that. My dream girl has become my wife. I'm talking about many things like dream car, dream house,
different situation. Like sometimes, when I'm teaching, I fantasize that I'm teaching in a very great university, and these are the students, they're asking questions. Literally, it happens with me, and I don't know whether it happens with you or not. Okay, so a common man is always dissatisfied with his reality. Okay, अगर कहते हैं कि if you are very highly conscious human being, then you get depression because you're not satisfied with whatever is around you. So with the technology, in the intervention of technology, with more mind, with more studies, with more knowledge around us, with more information, don't you think, like, we are not common human beings, and we want to achieve more and more, and we are always dissatisfied with whatever we have right now with us. Okay, so that is what postmodernists they want to show. I hope you understand this. Clear? अच्छा, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. एक बात बताइए कि क्या हम कई बार आजकल आपने देखा है इन द मार्केट देयर आर एडसैट्स ब्रांड्स. क्या बोलते हैं एडसैट्स ब्रांड्स को? मतलब जैसे एक तनु वेट्स मनु में एक डायलॉग आता है कि क्या नाम था, कोई जूते का नाम लेती है वो, कि ये नहीं सही तो वो सही. मतलब कि अगर आप नाइकी के शूज नहीं खरीद सकते हो तो आप उसका कोई ऐसा लो ब्रांड जो जैसे 10,000 का जो शू है वो हो सकता है आपको 200 रुपए में बाजार में मिल जाए, विद द सेम शेप एंड विद द सेम ब्रांड ऑन इट. ओके, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है वो डायलॉग. किसी को याद है तो बताओ. तनु वेट्स मनु में कि वो आपने पता है ना, उसमें एक हम शक्ल होती है वो, तो उसमें वो कहती है कि देखो मेरी मेमोरी बड़ी वीक है मूवीज को लेकर के, कि कोई बड़ी सी कंपनी का नाम लेती है, अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज नेम, द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, भावना. चलिए, अभी आई डोंट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डायलॉग of that movie, but that means, this is our life, that if we can't purchase real diamonds, then American diamond set is always available in the market. I hope you understand this point. Okay, so ersatz, there is a word in English, ERSATZ. Okay, ersatz, that ersatz means nakli jisko bolte hain apan. Okay, and I think we live a nakli life, we live a life which is not real. अच्छा, अब मैं आगे नहीं समझाऊंगा, आगे हम लोग एग्जाम की बात करते हैं. चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर थिंग्स. फोर्थ एस्पेक्ट लिखिए आप. फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न नॉवल इज आयरनी. राइट डाउन. फोर्थ और फिफ्थ. ओके, आयरनी. आयरनी के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, केवल आप 2-3 नॉवेल्स के नाम लिख लीजिए. दैट वी आर लिविंग अ वेरी, हाँ, रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही. हाँ पुष्पिता, थैंक यू वेरी मच. वाओ, तुम लोगों को मूवीज बड़ी अच्छी तरह से याद रहती हैं. आई एम प्रेजिंग यू. ओके, इन एन आयरॉनिकल मैनर. ओके, जोसेफ हेलर लिखिए एक राइटर का नाम. यस्टरडे ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट जोसेफ हेलर. जोसेफ हेलर्स कैच 22. Joseph Heller's Catch 22, 1961. There is a lot much irony, shown in that novel. And Kurt Vonnegut's Cat's Cradle. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान से लिखिएगा, because Joseph Heller's Catch 22 is that Catch 22 phrase has entered into the English lexicon. How many of you are aware about? Do you know about this phrase meaning? Water, water everywhere, not a drop to drink is an irony. Yeah, that's good, Huma Khan. But I'm talking about, postmodern irony. Postmodern irony is very different, than the common term. अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको डिटेल में आयरनी पढ़ना है? बताइए मुझे, यस बोल के बताइए. क्या आपको डिटेल में आयरनी पढ़ना है? यस बोल के बताइए. I'm waiting for your answer. Do you want to study irony in detail? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द क्लास. शत्रुपा मना कर रही है, नो. हुमा यस कह रही है. देन डोंट वरी. आयरनी का वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने अपने यूट्यूब पे, आज उसको देखिएगा. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माई यूट्यूब वीडियो. यूट्यूब का नाम है मुकेश पारिक कॉस्मोस. उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और उस वीडियो को आज देखिएगा जरूर. ठीक है? ओके, कम बैक. सो जोसेफ हेलर का कैच 22. कितने बच्चों को पता है कि कैच 22 एक फ्रेज है? कैच 22 सिचुएशन का मतलब होता है
dilemma, a confusion, what to do, what not to do. Okay, that is catch 22 situation, and that is our irony. आप देखिएगा कि we live a very simple life, but we have made our life complex. Okay, and that complexity is, I think that complexity is our own creation. Clear? And sometimes we blame the other forces. वो भी हम बात करेंगे आज नॉवल के वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको इस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज इट द कॉमन ह्यूमन बीइंग इज ब्लेम वर्दी फॉर दैट और द अदर पीपल आर ब्लेम वर्दी. ओके, अच्छा, कैट स्क्रैडल लिख लिया, कुट वॉनेगट्स कैट स्क्रैडल, ये आपको एग्जाम में आया हुआ है एग्जैक्टली क्वेश्चन, पहले भी 1963 में ये पब्लिश हुआ था. अच्छा, अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए. दैट इज द सिक्स्थ एस्पेक्ट, हाइपर रियलिटी. Write down hyper reality. I promised you 2-3 days back that I would discuss hyper reality, because hyper reality is the most important and I think the toughest thing if we talk about. I said no. Okay, Satshatrupa. Hyper reality. Write down hyper reality. Okay, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था फ्रेडरिक जेमसन का नाम लेकर के, that every critic is not happy with this postmodernism, okay, with this metafiction, with this fabulation, with this historiographic metafiction, and okay, आपको ये मेरे ख्याल से आपने नाम सुना होगा. चलिए पहले आप लिखिए कि व्हाट इज हाइपर रियलिटी. लिखो पहले नॉवेल्स के नाम लिखो. गाय डिबॉर्ड, GUY, राइट डाउन द नेम ऑफ द नॉवेलिस्ट, GUY, गाय डिबोर्ड, DEBORD, गाय डिबोर्ड. 2-3 बार नाम बोल के देखो ताकि आपको ये नाम रटे, बिकॉज दीज आर न्यू नेम्स. ये ड्राइडन, जॉर्डन, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ये तो आपको रटे हुए नाम है. ओके, T.S. Eliot, बिकॉज दीज आर मोस्टली kept in the courses, but these are the new names for you. Okay, so गाय डिबोर्ड नाम लिख लिया. उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट book है, it's a very influential book I consider, that is the Society of Spectacle. हम लोग सोसाइटी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है सोसाइटी. phonetics अगर if I use the received pronunciation, then I will pronounce it the Society of Spectacle. It was a book published in 1967. Okay, and in that book he criticized a world in which media has invaded every corner of society. Media has encroached. We call them paparazzi. आपने देखा होगा किस तरह से मीडिया, अभी आप देखिए एक दो चैनल्स, हमने टीवी बंद कर रखा है आजकल, इसीलिए ऑडियो नहीं आ रहा है. सो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक. एक बात बताइए, आप लोग न्यूज सुनते हो क्या? हैव यू सीन हाउ दीज माय पीपल, दीज जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स, दे आर रनिंग आफ्टर, क्या नाम है उस लड़की का, रिया चक्रवर्ती, एंड मतलब बेशर्म हो गए बिल्कुल. आपको डायना की डेथ याद है? डायना जो इंग्लैंड की डॉटर इन लॉ थी, मालूम है क्या डायनाज डेथ? वो एक टनल में जा रहे थे, एंड बिकॉज दे वर एस्केपिंग फ्रॉम द पेपराजी. पेपराजी क्या होता है? ये जो बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक मेडलिंग काइंड ऑफ ये जो होते हैं जर्नलिस्ट, दे वांट टू कैप्चर यू इन द कैमरा एंड ऑल. क्लियर? सो मीडिया, आपने देखा होगा दैट वी आर गवर्न्ड बाय मीडिया, एंड मीडिया क्रिएट्स अ काइंड ऑफ रियलिटी विच इज नॉट अ रियलिटी. पहले दोबारा मुझे बताइए मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आप लोग हो, आपकी जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की आज की तारीख में, you consider that whatever is shown in the movies, whatever is shown on the say TV screen, or say newspaper, or say magazines, that should be copied in life, and life is governed by those pictures and images. Clear? So hyper reality means somewhere we have created a kind of reality which is not reality at all. Okay, hyper reality का exact meaning क्या होता है? जैसे something which seems to be reality but it is not reality. Clear? Okay, all that once was directly lived has become mere representation.
we used to live a real life. Okay, for example, we used to just say the other day I was giving an example that suppose you are present in a function of a school and your sister is dancing on stage. Okay, and instead of watching that dance, you start capturing it in your camera. Okay, and then you would like to see that video instead of looking at the real dance. Clear? It means all that once was directly lived, we want to live a life in images. Clear? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट राइटर जिसका सुनील निषाद ने सिमुलेशन वर्ड यूज किया है, ग्रेट डियर बॉय, राइट डाउन जीन बॉडीलार्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ नेट में. जीन JEAN, जीन और जीन द वे यू प्रोनाउंस. ओके, बॉडीलार्ड, बॉद्रियार भी बोलते हैं, एल का साउंड नहीं आता है इसमें. BAUDRILLARD, Jean Baudrillard. If you see the pronunciation in dictionary, on YouTube there is a section like if you don't know how to pronounce a particular name, you can just type the name and write like what is the pronunciation. Okay, then you see that Jean Baudrillard, he is pronounced like that. लिख लिया आपने नाम, JEAN, Jean, BAUDRILLARD, Baudrillard. He wrote a book, लिखो, उनकी बुक का नाम लिखवा रहा हूँ, Simulacra and Simulation, SIMULACRA, simulacra भी बोल सकते हो, but that is not the right pronunciation. Simulacra and Simulation, SIMULACI. Those who have got the PDF material, study material, if they go in depth, they will find this. Everything has been given there. Clear? Simulacra and Simulation, published in 1981. Okay, as I was talking about when I was giving example of Fredric Jameson, that all the critics are not happy. Okay, in the same manner, this Baudrillard, Jean Baudrillard, in his book Simulacra and Simulation, he said that postmodernism was not all about experimental art and fiction. It is not about only that you're doing experiment with art and fiction and you're coming up with something new. Okay, in this book, if you go, you will find that Simulacra and Simulation, the writer has written in detail, the history, like what were the situation, what were the conditions, which gave birth to this kind of reality where we are living now. Clear? He focused on the 20th century background in which it had developed. ये जो हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, अंदाजा लगाइए वो कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली जो धीरे धीरे शॉपिंग मॉल का खुलना. ओके, लाइक आई एम 45 नाउ and I've seen in my life like 20 years back I came to Jaipur and there was not a single mall in this city. Clear? But now in the last 20 years I've seen the mushrooming of malls and different places, the concrete jungle, and step by step abhi jo situation hai that instead of sitting in a offline classroom, आप इसको कोई बहुत पॉजिटिव चीज मत मान लेना कि हम दूर दूर से लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं. And because when we get connected with people who are living away with this virtual reality, we call it virtual reality. Hyper reality means virtual images. Don't you think like you are not talking to a real person, you're talking to an image right now. Okay, and अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है हमारा टाइम सेव हो रहा है, but somewhere the real knowledge cannot be had. Okay, so that real life situation, you can't touch me, you can't shake hand with me, and you cannot come to know about my pains and my problems, and what I'm wearing down this t-shirt, so the torso part, like whether I'm sitting in a pants or a trousers or a. So what I want to convey this message that you're too away from reality. And then you start considering this reality which is presented in front of us a kind of reality. Clear? So as I told you that there are different writers and critics, those who are praising postmodernism, there are people who are not praising. Clear? So he blames media and consumer culture. He, right now, this Baudrillard, Jean Baudrillard, he
blames media and consumer culture to have led this world to a Matrix kind of style. Matrix. Have you watched that movie Matrix? Hello, have you watched the movie Matrix? In Matrix, आप कभी ध्यान से उसकी नंबरिंग सुनिएगा. गीता के श्लोक चलते हैं when the numbering comes at the end of the movie. And in all the scriptures, particularly Hindu scriptures, it is considered that this world is a Maya. Okay, this is not reality. As Plato says that this is quite removed from the reality. And इस सब की शुरुआत तो प्लेटो से ही होती है. बिकॉज एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस प्लेटो, द फिगर्स एंड शेडोज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, दे आर ऑलवेज एट लॉगरहेड्स. हमें जिंदगी में हमेशा जब तुम टीचर्स बन जाओगे, देन यू विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स. Like on one hand there is Plato, one who says that something which you can touch and see is not reality, but that is the ultimate reality. If you remember, in one of my earlier lectures I was talking about the painting by Raphael, the School of Athens. जवाब दीजिए. Do you remember the lecture where I was talking about Raphael's painting, School of Athens? In that painting, in the center, you have Plato. Okay? मेरी क्लासरूम में ये पेंटिंग लगी हुई है. आप एक काम कीजिएगा, आज आप इसको डाउनलोड कीजिएगा. राइट डाउन रफेल्स फेमस पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस. आप इसको डाउनलोड करेंगे और अपना स्क्रीन, वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन सेवर या क्या बोलते हैं उसको, जो व्हाट्सएप पे होती है, प्रोफाइल पिक्चर बना लेंगे अपनी. ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज सो दैट यू कैन वेल नो द नेम. उसमें क्या दिखा रखा है? प्लेटो इज इन द सेंटर, इज वेयरिंग आई थिंक saffron clothes, okay, and he is pointing his finger towards sky, okay, but jo Aristotle is pointing towards this horizontal side. So this vertical and this horizontal, it means vertical means vertical means that is the ultimate reality. तो जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है वो लोग क्या बोलते हैं कि ये मायावी संसार है. this is a world which is a reflection of something which is somewhere else. So matrix we have created with media. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. and the what seems real is not reality but a simulacra. और इस राइटर को समझने के लिए मैं आपको अभी बहुत सारी मूवीज के भी नाम बताऊंगा. ओके, चलिए. बौद्रियाद क्या बात कर रहे हैं, लिखिए. He does not embrace the postmodern age. Instead, he saw its speed and its blurring of reality and unreality as having had a damaging effect. Damaging effect होता है कि हमारी जो reality और unreality को जब हम mix कर देते हैं. Okay, and he says that we are bombarded with images. Is right. मैंने कुछ लिखा है ताकि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं. He says that we are bombarded with images that we have lost touch with reality. Okay, and now we mistake these images as simulacra. मतलब एक बच्चे को चूल्हे की तस्वीर दिखाओ आप, आप उसको रियल में चूल्हा नहीं दिखा सकते क्योंकि मम्मी चूल्हे पे खाना बनाती नहीं है. ओके, वी हैव गैस स्टोव्स दीज डेज. तो बच्चे को आप लोग जैसे एक स्टूडेंट है, उसको एप्पल नहीं देखा जिंदगी में कभी. ओके, आप उसको स्कूल में पढ़ा रहे हो ए फॉर एप्पल, तो बट ही हैज नॉट सीन, ही हैज जस्ट सीन इन द पिक्चर. ओके, सो उसको क्या मालूम कि व्हाट इज एप्पल. इन द सेम सेंस आवर इमेजेस हैव बिकम आवर रियलिटीज. तो आपकी ये मत सोचना दैट यू आर away from these things and these traps of images. No, you are not. इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जब भी मौका मिले सारी पेंटिंग एग्जीबिशंस देखने जाइए. इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप दुनिया घूमने जरूर जाइए, आसपास की गांव जाइए, आसपास में कोई पहाड़ है तो पहाड़ पे जरूर चढ़िए. यू शुड हैव अ कॉन्टेक्ट विद नेचर वेयर आपको एक एक मकोड़ा, एक एक चींटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपकी आंखों के सामने से गुजरे. आपको कोई सड़क के किनारे कोई झोपड़ी बनाकर चटनी पीसता हुआ आदमी आपको दिख रहा है. you should have the first hand experience of so many things in your life. Only then if you come across any image, then you can relate it with life, and then you will feel. जैसे when we talk about Dalit literature, okay, but we have never seen any Dalit. आपको दलित की aesthetic sense को समझने के लिए you need to go to a person, and आजकल एक human library का concept आया है. How many of you are aware about this human library? The concept of human library. लिखिए, इसको टर्म को लिख लीजिए. There has been a concept of human library, and
जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलते हो, जैसे मान लीजिए देयर इज़ अ हॉकर, सब्जी वाला जो ठेले वाला होता है, वो मेरे घर के बाहर आया, मैं उससे सब्जी खरीद रहा हूँ। देर आर टू सिचुएशंस, एक तो आई विल जस्ट बाय द थिंग्स विच आर नेसेसरी एंड पे हिम एंड ही विल गो, ओके। बट वन इज लाइक आई विल बी टॉकिंग टू हिम, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हो। जितने भी पुराने लोग हैं, आपने देखा होगा, पुरानी मम्मी है, वो नौकरानी से सारी बात कर रही है, उसको उसकी पूरी पीड़ा पता है। Okay, then you know, look like you can understand the aesthetic sense and the point of view of the other people also. Okay, then these images will not remain images for you. Then I think these images, you can go, being a professor in the coming time, you can go beyond the images and can relate them. चलिए, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकता। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट? अच्छा बताइए, जो इमेजेस में हम जीने लगे हैं आजकल, व्हाट इज द रिजल्ट? दैट द लाइफ सीम्स रियल बट नो लॉन्गर रियली रियल। लिख लीजिए, दैट लाइफ सीम्स रियल बट इट इज नो लॉन्गर रियली रियल, बट वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ हाइपर रियलिटी। Everywhere we are living in a hyper reality. Clear? And nothing is true, nothing is real, nothing is original. Even art and fiction are created by reworking existing texts. तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म में हम सुबह से पढ़ रहे हैं कि intertextuality is there, somebody else's story is reformed and it is made your story. It means, where is the originality then? Okay, so it means they're also posing the concept of truth also, that truth can be made subjective. Somebody else's truth can be your truth. Okay, so postmodernism, it talks about like if nothing is true, then what is the thrill in postmodernism? Okay, तो ये जो questions pose up होते हैं, that if nothing is true, then why should I go there and watch the images and all? अच्छा, ये आपके दिमाग में questions कब आने लगेंगे? If you are living in a village, if you have gone through the hardships of life, okay, if you have seen some deaths in your family, if you have seen the untouchability, if you have seen apartheid in your life, okay, then if you cannot be sympathetic to Riya Chakravarti, whether she is a culprit or not. That is not my question. You cannot be sympathetic with anybody. Okay, so then if you are not sympathetic, you cannot nothing can arouse say sympathy, empathy in you. Then this is nothing but the demise of civilization. आपको लगना चाहिए कि जो civilization है, civilization is dead now. Okay, this much is the concern of these writers. Clear? And we are living, ultimately हमारे हाथ जो आएगा वो होगा pain, दुख। शुद्ध हिंदी में कैसे लिखते हैं दुख को बताइए? दू लिख करके दो बिंदियां और फिर ख, है ना? सो इट्स नॉट दुख, इट इज दुख, पेन। ओके, सो लिखिए अब विलियम गिब्सन का नाम लिखिए एक बार पहले। विलियम गिब्सन का एक साइबर पंक नॉवल है न्यूरोमैंसर, right? Neuromancer, N-E-U, Neuromancer spelling is Neuromancer, Neuromancer. It was published in 1984 and the writer has created a hyper real world in that. अच्छा, आपको एक have you ever watched that movie Wall-E? Have you watched the movie Wall-E? लिख के बताइए मुझे, क्या आपने वॉल-ई मूवी देखी है? वॉल, WALL.E, वॉल-ई। हैव यू वॉच्ड वॉल-ई? अरे भाई, आपने विलियम गिब्सन का साइबरपंक नॉवल न्यूरोमैंसर नहीं पढ़ा होगा, तो टीवी पे फिल्में तो आप देखते ही हो बच्चों वाली। हैव यू एवर कम अक्रॉस द मूवी वॉल-ई? बताइए, कोई जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। इन दैट मूवी वॉल-ई, अगर आपने नहीं देखी तो आज आप थोड़ा सा उसको देखिएगा इंटरनेट पे, नेटफ्लिक्स पे होगी वो मूवी जरूर। शत्रुपा हैज वॉच्ड इट, दैट्स ग्रेट। इफ यू रिमेंबर दैट मूवी, हाइपर रियल वर्ल्ड इज देयर। आप जरा उसको ध्यान से देखिए, आप लिख लीजिए बस, ओके। एंड हाईटेक कंज्यूमरिज्म इज शोन इन दैट मूवी, ओके। एंड जैसे चारों तरफ गलियां भी जो है, बार्स, एवरीथिंग इज वर्चुअल। ओके, आपको पता है अभी जैसे IIT दिल्ली ने अपना कॉन्वोकेशन सेरेमनी किया था, तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इट वाज ऑल हाइपर रियल, मतलब हर
कैसे समझाऊं, जैसे कार्टून्स, एनिमेटेड लोग हैं, एनिमेटेड पे आपका चेहरा लगा दिया एंड यू आर टेकिंग द डिग्री, बट यू आर नॉट रियली प्रेजेंट देयर, यू आर जस्ट सिटिंग इन योर रूम. फॉर एग्जाम्पल राइट लाइक वी आर, सताक्षी ने भी ये मूवी देख रखी है. आप लोग लिख लीजिए, आज आप लिख लीजिएगा, आपको देखना है भाई, यू नो ऐसी वर्चुअल रियलिटीज की कुछ मूवीज हैं. अच्छा, एक मूवी के बारे में मैं बता दूं आपको, बिकॉज लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो उससे जस्ट पहले 26 ऑफ मार्च के आसपास आई थिंक, और से आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इन फेब्रुवरी, या फेब्रुवरी 26 ऑफ फेब्रुवरी आई वाज इन केरला. I was there to attend a seminar on cultural studies. Okay, तो वहां पे somebody read a paper on a movie, write down, मलयालम मूवी का नाम लिखिए, आप उसको देख भी सकते हैं. अगर आप ये मूवी देख लेते हो वॉल ई, और वॉल ई से समझ में नहीं आता है सपोज, देन यू शुड वॉच दिस मलयालम मूवी. आप लोग देखते हो क्या मलयालम मूवीज, कि केवल हिंदी और इंग्लिश मूवीज देखते हो? आप लोगों को मलयालम मूवीज भी देखनी चाहिए. ओडियन मूवीज, उड़ीसा की मूवीज आर वेरी, बंगाली मूवीज आर वेरी गुड. मलयालम मूवी का नाम लिखो, एंड्रॉइड कुंजपन वर्जन 5.25. एंड्रॉइड कुंजपन, एंड्रॉइड कुंजपन, KUNJAPPAN, एंड्रॉइड कुंजपन वर्जन 5.25. Inception is also a movie on hyper reality. Matrix is on hyper reality. अरे भाई मलयालम मूवी लिख लिया, हैव यू रिटन द नेम? एंड्रॉइड कुंजपन वर्जन 5.25. 5.25. ओके, इसमें क्या होता है, एक इंजीनियर शायद लड़का है, ही समवेयर एल्स इन द कंट्री, उनके जो फादर हैं उनके देखभाल के लिए ही गेट्स अ रोबो, एंड वो रोबोट अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ. अरे तो लैंग्वेज के लिए कौन पढ़ रहा है? मूवीज तो इसलिए देखनी चाहिए ताकि वी कम टू नो अबाउट ग्रेटर आइडियाज. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज देन व्हाट डज इट मीन? आप जेस्चर्स देख लीजिए, उसमें सबटाइटल्स भी आते हैं कई बार. ओके, अच्छा, राइट डाउन अनदर राइटर्स नेम, कुर्ट वॉनेगट. आज कुर्ट वॉनेगट बहुत फेमस है पोस्ट मॉडर्न राइटर्स में. हैरिसन बर्जरन, सॉरी. न्यू रोमांसर्स राइटर्स नेम दोबारा बोलूं, देखो उसका नाम था विलियम गिब्सन, WILLIM, William Gibson's novel New Romancer. Okay, and the second name is about hyper reality movie novelist Kurt Vonnegut's Harrison, HARRISON, Harrison Bergeron, BERGERON, published in 1961. Harrison Bergeron, BERGERON, 1961. Okay, hyper reality. So everyone is finally equal, okay, but no one has individual skills or characteristics. इस हैरिसन बर्जरन में क्या दिखा रखा है? द राइटर हैज सीन अ फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी. अच्छा, तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूं आपको. आपको पता है, वी वांट टू बिकम, यू नो, सेम काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स. हमें एक जैसे बनना है. we want to copy people. Okay, so the writer has created a world in which everybody is same. Okay, but nobody has humanistic individual characteristics and all, and a very bleak kind of society. ये आपको एकदम समझ में नहीं आएगा. You can become a critic, if you start reading these novels, if you start reading commentaries, essays, and if you listen to my lectures continuously, then also you can become a critic. आपने नोटिस किया कभी? मैं अपने आप को प्रेज नहीं कर रहा हूं, उस तरह से मत ले लीजिएगा कि मेरा वीडियो बना करके आप डाल दो कि अब मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं. इट्स नॉट लाइक दैट. आई सी, बिकॉज समटाइम्स आई फील दैट like I say something in my classroom and the other day certain critic writes that. So ऐसा आपके साथ होगा, because once you become a professor, you start reading a lot. धीरे धीरे what you think means, your mind is criticizing the world around you. Okay, so अभी मुझे क्या बात करनी थी आपसे? एक ब्रेन वॉशिंग हमारी हो चुकी है, जो न्यू जनरेशन है उसकी. उनको टेक्निकलिटीज के द्वारा, by showing same kinds of movies, by showing the same kinds of fashion. कभी आपने नोटिस किया है, आज का जो यूथ है वो फैशनेबल बनना चाहता है. उसको कभी भी देखिएगा, वो उसको हमेशा बेस्ट क्लोथ्स चाहिए. एंड हैव यू एवर सीन न्यूज़पेपर्स? जो क्या, न्यूज़पेपर तो देखते ही होंगे. लेस आइटम्स ऑफ न्यूज आर देयर,
एंड मोर एडवर्टीजमेंट्स आर देयर। हमारे शहर में तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया, या अगर मैं केवल द हिंदू को छोड़ दूं तो सर आई एम वेरी पैनिक अबाउट एग्जाम। सुलीन लिशाद, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। हैव यू बीन माई स्टूडेंट? आई थिंक नो, मेरे स्टूडेंट्स पैनिक में नहीं रहते हैं। मेरे स्टूडेंट बन जाओ, पैनिक नहीं रहेगा। ओके, कम बैक। चलिए टॉपिक पर आइए। पहले मुझे बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि टुडेज यूथ इज मोर प्रोन टुवर्ड्स फैशन, और हमने देखा है हमारे शहर में के ज्वेलरी के एडवर्टीजमेंट, मकानों के एडवर्टीजमेंट, different shops, you know, where you can get new dresses, shoes, hats, ties, purses. Okay, इन सब चीज़ों के एडवर्टीजमेंट से अखबार जो है वो भरा होता है। Now, what we are living for? Are we investing to become a deeper philosophical human being, or we are just becoming like dummies, mannequins, who will wear and show off their dresses to people? Okay, we have no more original ideas now. Newspapers ideas are our ideas. That's why if you see anybody, for example, a few days back in one of my lectures I was alluding to this fact, that if there is a scene in a drama or a novel where somebody is reading a newspaper, it means the writer wants to comment on that, by that scene, that these human beings are devoid of any kind of original ideas, and their thrill, their excitement relies on the outward news of somebody else's. Clear? आप कभी भी देखिएगा, हमारी आदत पड़ गई है, boredom, ennui and existential angst is our day to day life these days. ठीक है ना? तो आपको इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बच्चे अभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे आने वाले समय में, उनको ऐसे समझना है कि एक ह्यूमन बीइंग का जो पर्पस होना चाहिए हायर एजुकेशन के साथ में, वो ये है कि उसके ओरिजिनल आइडियाज हो, और हम लोगों को उसके ओरिजिनल आइडियाज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, वी ट्रॉल पीपल। मैं तो आजकल फेसबुक पे कोई भी पोस्ट लिखने से डरने लगा हूं। इमीडिएटली अगर मैंने अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दिया तो कह रहे हैं कि व्हाई देयर इज नीड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम फॉर 14 टाइम्स। ओके, इसका मतलब है, और न्यूज की भी जरूरत नहीं, कान खोल के सुन लीजिए, आपको अजीब लगेगा। कोई जरूरत नहीं है आपको इस न्यूज की के उस शहर में, बिकॉज आपने पहले तो अपने शहरों को बड़ा कर लिया, ओके, और फिर उसके बाद में आपने क्राइम क्रिएट कर लिया वहां पे। दिस इज मैन मेड, पॉवर्टी इज मैन मेड, एवरीथिंग इज मैन मेड। और देन आप लोग कहीं मर्डर हुआ इसकी खबर ले रहे हो, देन डू यू फील यू आर एनलाइटेंड ऑफ नोइंग समबडीज मर्डर्स न्यूज? नो। इसका मतलब है कि हम लोगों को अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए कि आप लोग जब प्रोफेसर बन के क्लासरूम में घुसोगे तो आप लोग वहां पे क्या करने जा रहे हो। आप लोगों को ओरिजिनल आइडियाज वाले लोग चाहिए, और हर आइडिया की कदर होनी चाहिए कि वो कुछ कह रहा है तो अच्छा मैं उसको सुनूं, अच्छा उसको कट कर दूं, तो कट करने के साथ साथ में मैं उसको एक्सक्यूज में भी बोलूं कि आई डोंट एग्री विद यू। अखबारों में लिखा तो आता है दैट वेदर आई डोंट एग्री विद यू बट आई रेस्पेक्ट योर आइडियाज, बट ऐसा हो नहीं रहा है। वी आर वी वांट टू हर्ल अपॉन आवर आइडियाज, एंड इफ अ कंट्री इज filled with those kind of people who have similar ideas, it means humanity is on stake. Okay, चलिए हम ब्रेन वॉशिंग वाली बात कर रहे थे। पीपल आर स्टॉप्ड फ्रॉम रिकग्नाइजिंग, काउंटर एक्टिंग, उनको एक जैसी चीजें पसंद आने लगी हैं, एक जैसा फैशन। इफ समबडी इज डिफरेंट, अगर मैंने इतनी साइड स्टेप्स रखी है तो तुरंत मुझे टोक दिया जाएगा, यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, दिस इज ओल्ड फैशन। So what? यूनिक होना भी इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट एस्पेक्ट। सेवंथ एस्पेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन इज पैरानोया। पैरानोया एक बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है। इट विल टेक नॉट मच टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन इट। पैरानोया, PARANOIA। पैरानोया का मतलब होता है काइंड ऑफ फियर। ओके, सो टेक्नोलॉजी, ओके, एंड वॉर। देखो, अगर आपको कभी ऐसा लगे, you start distrusting people. Okay, एक फ्रेज मुझे याद आ रहा है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग। बिग ब्रदर इज वॉचिंग, बताइए कौन से नॉवल का फ्रेज है? बिग ब्रदर इज वॉचिंग। अरे 1984 जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है ना, बहुत फेमस। उसमें he has created technology and how technology can be used to spy on you.
आप देखिए चारों तरफ, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर 1950s एंड 60s थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपको पैरानोया को लिंक करना है दैट इन पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, पोस्ट मॉडर्न नॉवल, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ फियर which is prevalent in the drama. चाहे आप कॉमेडी ऑफ मैनिस ले लीजिए. I was having a dialogue with you few classes back. So पैरानोया जो है टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है. अभी एक टीचर पढ़ा रहा है, ओके, और कोई उसको माँ की और बहन की गाली लिख रहा है. इट हैपन्स. अभी when I was in my kitchen, my daughter was having her class there. She was attending her class, and what she told me that two boys in the classroom. She's only in 3rd standard, and the two boys, what they were writing कि let us delete madam, instead of madam आ रही है, madam हमें टोक रही है, because what she was saying, teacher was saying कि भाई hey Mr. you and you don't chat in the chat box. तो live class चल रही थी. So the two boys of 3rd standard, what they were saying, let us delete madam. अब आप अंदाजा लगाइए कि and few days back एक स्टूडेंट ने लिख दिया गधी मैम, डोंकी मैम. नाउ यू जस्ट इमेजिन छोटे छोटे बच्चे, if you are teaching them on online mode, then you are too much fearful of being deleted, being insulted, being your knowledge can be put at stake, like whether you know or not. अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत ब्रेव आदमी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जितना पढ़ करके और टू केटर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स अगर कोई पढ़ाए तो आई एम सो हैप्पी. ओके, बट आई नो एंड यू ऑल्सो नो दैट मेनी टाइम्स स्टूडेंट कम, people come, they are aged also, they are retired professors also, and they can make fun of me. Clear? So I'm also scared at times, like if somebody watches me, like the way I'm delivering the lecture, suppose मुझसे कोई गलती हो गई, so there is always a fear looming large in a postmodern fiction. और ये आपको पता होना चाहिए, man is a bundle of chaos. तो ये, as I told you earlier, that postmodern fiction is depicting the postmodern condition we are living after the invention of the media, malls, capitalism, consumerism, technology first of all. तो technology puts, actually में होता क्या है, देखो इसका एक psychology होता है. एक बात बताइए, what is the difference between the life governed by technology and life without technology? सोच के बताइए. There is a great difference. Technology wants to, because technology is machine, okay, and technology wants to put an order on us. Machine and machine made things are always similar, clear, they are identical, but the things which are created by human being, अगर आपकी मम्मी ने आज खाना बनाया है और वो शाम को फिर खाना बनाएगी, तो there will be a difference in the taste, okay, that that difference is natural, and that makes मम्मी की हाथ की बनाई हुई रोज की रोटी, रोज की सेम सब्जी, अगर वो बैंगन की सब्जी भी रोज बनाएगी ना, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो एक बैंगन की सब्जी रोज बना रही है, तो उसमें आप कभी बोर नहीं हो सकते. मुझे माफ कीजिएगा, आप बोर हो सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट. एक बार हमारे शहर में एक बहुत बड़ी होटल के अंदर माधुरी दीक्षित को इनवाइट किया गया, अखबार में पढ़ा था मैंने, एंड शी वाज टू इनॉग्रेट सम होटल, आई थिंक. सो वो बता रही थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मम्मा का खाना एंड अ शेफ्स खाना. शेफ का खाना आप रोज रोज खाओगे ना, बिकॉज शेफ क्या करता है, इन अ मैकेनिकल मैनर कैलकुलेटेड एंड इंग्रेडिएंट्स डालता है. लेकिन मम्मी के खाने में ना अंदाजे से नमक, अंदाजे से मिर्च, अंदाजे से, दिस अंदाजा इज व्हाट माधुरी दीक्षित वाज टॉकिंग. माधुरी दीक्षित को मैं इंटेलिजेंट भी मानता हूं, ओके, वहीदा रहमान, माधुरी दीक्षित, उनको विदुषियों की कैटेगरी में रखा जाता है, बिकॉज वो अब कभी और बात करेंगे कि दीज अंदाज जिसको बोलते हैं, दिस इज नेचुरल, एंड दैट नेचुरल गिव्स अस रसा इन अवर लाइफ. ओके, सो दिस कंट्रोल्ड endeavor of machine, or say the agenda of machine, where our human life is chaotic and machine wants to put it in order. तो जैसे ही मशीन ऑर्डर क्रिएट करती है तो हमें डर लगता है. सो दैट इज कॉल्ड पैरानोया, एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्शन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. ओके, फिलिप रीव का नाम लिखिए, राइट डाउन नेक्स्ट नॉवल, फिलिप रीव, PHILLIP, फिलिप रीव, REEVE.
ओके इनका एक स्टीम पंक नॉवल है मॉर्टल एंजिन्स. राइट डाउन. दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. मॉर्टल एंजिन्स, MORTA. तो just imagine mortal engines, MORTAL, mortal engines, ENGINES. 2001 में पब्लिश हुआ था. ओके और एक और बुक का नाम लिखिए, एलन मूर्स बुक वॉचमैन. MEN, वॉचमैन, नॉट MAN सिंगुलर. एलन मूर्स नॉवल वॉचमैन, पब्लिश्ड इन 1986-87. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. 8th पॉइंट लिखिए, फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, 8th aspect of postmodern fiction is fragmentation. Fragmentation can be in the part of grammar, in the part of sentence making, in the part of in the sequence of the cohesion of the sentences and the cohesion of the story, coherence of the story in the novel. Because as I told you that it tries to depict the human life in a world governed by media, images and technology. तो हमारी जो लाइफ है वो एक फ्रेगमेंटेड लाइफ है, इजंट इट? पहले बताइए अपनी लाइफ, हमारी लाइफ फ्रेगमेंटेड है या नहीं है? डू वी लिव अ वेरी ऑर्डर्ड लाइफ? क्या आपका हर रोज एक जैसा मन करेगा? क्या आपको नहीं लगता कभी कभी नेचुरली यू फील वेरी डाउन, समटाइम्स यू फील वेरी चीयरफुल, कभी कभी आपको जो लोग बहुत पसंद है उनसे भी बात करने का मन नहीं कर रहा है? हैव यू एवर फेल्ट ऑल दीज थिंग्स? इट मीन्स यू आर नेचुरली. जरूरी नहीं है कि हमें अपने डैड बहुत अच्छे ही लग रहे हैं हमेशा. वो आइडियलिज्म इज ऑलवेज एब्सेंट फ्रॉम आवर लाइफ. क्लियर. सो एक्चुअल में इसका जो कल आपने मेरा जो वीडियो जरूर देखा होगा पोस्ट मॉडर्निज्म का. पहले बताइए यूट्यूब से, माय यूट्यूब चैनल्स नेम इज मुकेश पारिक कॉस्मोस. क्या आपने वहां पे पोस्ट मॉडर्निज्म का वीडियो देखा था? इफ यू हैव सीन दैट यू नो इट बेटर दैट देयर आई वाज टॉकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट. क्योंकि एनलाइटनमेंट का जो एज आया था ना नियो क्लासिकल एज में, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर, रैशनैलिटी, साइंस, रीजन, यूनिटी, and modernity somewhere talked about all these things. But postmodern novel, postmodern drama, postmodern short story, postmodern essays, postmodern movies, they all put them at question. इसका मतलब है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इट सेलिब्रेट्स फ्रेगमेंटेशन. इट सेलिब्रेट्स फ्रेगमेंटेशन. ये कौन है जो मुझ पे एंग्री इमोजीज छोड़ रहा है भाई? इफ यू आर एंग्री देन यू शुड गो फ्रॉम हियर. डोंट लाफ एट मी. आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स and I'm teaching on this live and open platform so that maximum number of students can be benefited. Though I'm very much busy these days removing and unfriending people who are not very much keen to listen to these lectures and all. I'm so sorry, I digressed. Okay, पहले बताइए आपने ये सब लिखा फ्रेगमेंटेशन का, समझ में आया आपको? So मॉडर्निस्ट के अंदर जैसे आपने इफ यू रिमेंबर टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड. अच्छा, एक देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द फ्रेगमेंटेशन इन द मॉडर्निस्टिक राइटर्स एंड द फ्रेगमेंटेशन इन द पोस्ट मॉडर्निस्टिक राइटर. मॉडर्निस्टिक राइटर्स जैसे आपने देखा होगा कि द वेस्टलैंड है, देयर आर फ्रेगमेंट्स. ओके, देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट फ्रेगमेंटेशन. ओके, एंड इन मॉडर्निस्टिक फिक्शन एंड पोइट्री एंड नॉवल एंड ऑल दे वॉन्ट टू क्रिएट एन ऑर्डर आउट ऑफ दिस फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड. क्लियर. बट एज आई टोल्ड यू दैट मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का फ्रेगमेंटेशन के ऊपर एक जैसा एटीट्यूड नहीं है. फ्रेगमेंटेड जो वर्ल्ड है, पोस्ट मॉडर्न उसको सेलिब्रेट करता है. कैसे समझाऊं आपको? जैसे क्वियर थियरी है, ओके, कि एक लड़का या एक लड़की, उसकी सेक्सुअलिटी डिफरेंट है, तो जो पोस्ट मॉडर्न नॉवल होगा वो उसको सेलिब्रेट करेगा, वो उसको छुपाएगा नहीं. ओके, मतलब उसको आइडियलिस्टिक बनाने की कोशिश नहीं करते हैं. ठीक है. सो what postmodernists, they don't mourn at fragmented world, whereas these postmodern writers, they don't mourn, but modernist writers mourn. चलिए आगे बढ़ते हैं. और उसके बाद लिखिए एक होता है अनरिलायबल नैरेटर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फ्रेगमेंटेड के बाद 8th पॉइंट या 9th पॉइंट. एक जो इनके नैरेटर्स होते हैं पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स के, दे आर अनरिलायबल. अनरिलायबल कैसे? आपने सलीम सिनई का नाम सुना है क्या? सलीम सिनई, द अनरिलायबल नैरेटर ऑफ मिडनाइट्स चिल्ड्रन.
और कल मैं आपसे पूछ रहा था कि सलमान रश्दी के ऐसे कलेक्शन का नाम बताइए, इमेजिनरी होमलैंड्स, वो मुझे रात को याद आया अपने आप, एपिफेनी हुई और मुझे उसका नाम याद आया कि बच्चों ने नहीं तो मुझे बताया. So I was asking you this question that Salman Rushdie, as a diasporic writer, as a postmodernistic writer, he has created an unreliable narrator. और उसने he has explained this concept in Midnight's Children and no उसमें Imaginary Homelands में. There he says that we writers who are writing outside India, we want to reframe our world. Based on the fragmented aspects of our memory. Okay, so if somebody is relying on memory, then he is unreliable. कैसे आप लोग कभी याद करते हो, आप कहते हो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम वहां उस तारीख को गए थे, अब यार पता नहीं उस तारीख को गए थे कि उस तारीख को गए थे. इट मीन्स memory is fallible. Okay, and they celebrate this fallible memory. एक बात बताइए, क्या हम लोग फोटोग्राफ्स हैं, क्या हम लोग कंप्यूटर हैं, क्या हमारी चीजें 100% श्योर होती हैं? नहीं ना. सो इट मीन्स दे सेलिब्रेट, पोस्ट मॉडर्निस्टिक फिक्शन राइटर्स, दे सेलिब्रेट दिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. ओके, सो विलियम फॉकनर का जो एब्सलम नॉवल है ना, राइट डाउन, एब्सलम 1936 में पब्लिश हुआ था. ये पोस्ट मॉडर्निज्म से बहुत पहले पब्लिश हुआ, मॉडर्निस्टिक फिक्शन में आता है, बट इट्स नैरेटर इज क्वाइट अनरिलायबल. एब्सलम विलियम फॉकनर का. ओके, उसने ना मास्टर, ये जो मास्टर नैरेटिव होता है ना, yesterday I was talking about master narrative. जो मास्टर नैरेटिव है, they don't talk about all these things. They say postmodernistic novelists, and they say that there is nothing which is ideal, there is nothing which is grand, there is nothing which is ordered, there is nothing which is truthful. Okay, और there can be psychological fragmentation also. अगला पॉइंट लिखिए, 9th है वर्ल्ड वॉर सेकेंड. वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आ जाता है आपका अपोकलिप्टिक फिक्शन, जो पोस्ट मॉडर्निज्म का एक और एस्पेक्ट है, अपोकलिप्टिक फिक्शन. तो इन वन ऑफ माय अदर लेक्चर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्लेग. उस नॉवल का नाम लिखिए, द प्लेग, 1947 में पब्लिश हुआ. दो द राइटर इज शोइंग अस द प्लेग रिडन सोसाइटी, बट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वॉर टोन लैंडस्केप. चारों तरफ वॉर टॉन लैंडस्केप राइटर ने दिखाई है. सो दैट ऑल्सो क्रिएट अ काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेशन. क्लियर? सो वर्ल्ड वॉर ऑन एपोकलिप्स. अपोकलिप्स क्या होता है? डूम्सडे. लाइक फ्रॉम अ क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू दे फील दैट कि कहीं प्रलय आ गई है. क्लियर? एंड बाय शोइंग apocalypse, by showing war-torn society, by showing untruthful narrator, they want to show the idea of history. एक बात बताइए, if you are putting a question mark on history, it means ये बड़ा philosophical है students. If you put a question mark on history, it means you are putting a question mark on progress. इंसान की जो progress है वो एक myth है. There is no progress. We feel कि हमने progress किया, then we die existentially if we look at ourselves. Then और जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं. देन नेक्स्ट जनरेशन कम्स एंड वो फिर से बनाती है. क्या एज हो सकती है एक बिल्डिंग की? 100, 200 years, 300 years, 500 years. ओके, इट मीन्स द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस. ये जो पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, दे आस्क अ वेरी डीप क्वेश्चन कि if you study history, it means when you study history, you want to say that we are more progressing or progressive people, and they are historical people. But you don't understand that कि जो बिल्डिंग्स पहले थी वो अब नहीं है, जो अब है वो पहले आगे नहीं रहेंगी. इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग meets his doom with destruction and rises again. So ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप है. उसको होलोकॉस्ट भी बोलते हैं. लिख लीजिए, HOLOCAUST, होलोकॉस्ट, विच अकर्ड इन होलोकॉस्ट का मतलब जो नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह में हुआ था. ओके, एक नॉवल का नाम लिखिए, MAUS, माउस. राइट डाउन नेम ऑफ नॉवल, MAUS, माउस. इसका सब टाइटल है अ सर्वाइवर्स टेल. ओके, रिटन बाय आर्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ द राइटर, आर्ट स्पीगलमैन. Art, ART, Art Spiegelman, SPIEGELMAN. His novel MAUS, its subtitle is A Survivor's Tale. That shows Holocaust. Clear?
एंड इन्होंने यहाँ तक कि जर्मन्स को कैट्स की तरह दिखाया है और जूस को माइस की तरह दिखाया है। बहुत ही मतलब अलग कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आज की क्लास इतनी लंबी हो जाएगी। लिखिए लेट कैपिटलिज्म। नेक्स्ट इज लेट कैपिटलिज्म। लेट कैपिटलिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द आस्पेक्ट्स ऑन विच फ्रेडरिक जेम्सन की जो बुक है उसका नाम लिखिए, फ्रेडरिक जेम्सन्स बुक पोस्ट मॉडर्निज्म। राइट डाउन, बुक का नाम है पोस्ट मॉडर्निज्म, then write down its subtitle, or the cultural logic of late capitalism. Cultural logic of late capitalism. Clear? एक और राइटर का नाम लिखिए। दिस इज अ नॉन फिक्शन बुक। आपने कभी अर्नेस्ट मैंडल का नाम सुना है? अर्नेस्ट मैंडल, ERNEST, sorry, EARNEST, Ernest Mandel, MANDEL. He was the one who popularized this term like late capitalism. आपको अगर late capitalism समझना है तो you can understand it like कि बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हो जाना, ओके, कंज्यूमरिज्म, मीडिया, ओके, और अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट अपना सपना मनी, जब हम लोग केवल मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, ओनली मनी ओरिएंटेड, एवरी सिंगल पर्सन इज मनी ओरिएंटेड, देन वी से लाइक इट इज लेट कैपिटलिज्म। ओके, अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। I can't cover them in today's class because I'm a bit tired now. Write down fabulation. Next point, fabulation. Fabulation means again a metafiction plus pastiche. Okay. एक बुक का नाम लिखिए सलमान रश्दी की, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज। इस पे क्वेश्चन आया हुआ नेट में। हारून, HA, पोस्ट मॉडर्निस्टिक नॉवल नहीं था बेटा वो, आप इसको वीडियो में देख लेना दोबारा प्लीज, है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। फैबुलेशन लिखिए। फैबुलेशन में एक नाम लिया मैंने, सलमान रश्दी की बुक है विच इज वेरी फेमस, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये, हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, SEA, सी ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फायुमिना। फायुमिना का स्पेलिंग लिखो, POIOUMENA, फायुमिना, POIOUMENA, फायुमिना। ओके, फायुमिना क्या होता है कि जो पोस्ट मॉडर्न नॉवल होता है, इन दैट नॉवल समटाइम्स अ कैरेक्टर और अ राइटर इज शोन क्रिएटिंग अ स्टोरी। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ क्रिएशन, आइडिया ऑफ क्रिएशन। तो ये आपको मतलब अपने आप पता चल जाएगा दैट इन द नॉवल ऑल्सो द राइटर इज क्रिएटिंग अ स्टोरी एंड द creation of story itself is the actual subject matter of the novel. तो आपको एक नाम याद होगा, डोरिस लेसिंग का नाम सुना है आपने? द गोल्डन नोटबुक का नाम लिखिए। इन दैट द आइडिया ऑफ होल लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट माई स्टोरी, दैट इज कॉल्ड फायोमिना। ओके, कार्लिल का नाम सुना होगा मेरे मुंह से, सार्टर इज सार्टस, दैट ऑल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी। ठीक है, व्लादिमिर नोबोकोव का नाम लिखिए। आपने व्लादिमिर नोबोकोव का नाम सुना है पहले? हैव यू एवर कम अक्रॉस व्लादिमिर नोबोकोव? लॉलिटा जिनका बहुत फेमस है, उनकी एक बुक है पेल फायर। राइट ऑन, पेल फायर, 1962। दिस ऑल्सो टचेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, फायोमिना। ओके, एक आप जर्ट्रूड स्टेन का भी नाम फटाफट लिख लीजिए, जर्ट्रूड स्टेन, GERTRUD, जर्ट्रूड STEIN, जर्ट्रूड स्टीन। उनका एक नॉन फिक्शन बुक है, लिखो, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, राइट डाउन, जर्ट्रूड स्टेन्स फेमस बुक, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस B. टॉकलेस। एलिस, ALICE, B कैपिटल B डॉट, ओके, एलिस B टॉकलेस का स्पेलिंग है TOKLAS, TOKLAS। आपको ये दिख जाएगी एग्जाम में, बुक ऑप्शंस में दिख जाएगी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस B. टॉकलेस। क्लियर, 1933। अच्छा, एक आपका होमवर्क है आज, नेट में 2 बार क्वेश्चन आया है। टॉमस मैन का नाम सुना है आपने? नोबेल प्राइज विनर राइटर टॉमस मैन। टॉमस मैन का नाम सुना है क्या? उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है जो स्टोरी कलेक्शन में मैंने आपको PDF में दे रखी है, डेथ इन वेनिस। डेथ इन वेनिस,
लिखिए डेथ इन वेनिस। इसके हीरो का नाम लिखिए, थोड़ा अलग है, गुस्ताव वॉन आर्शेनबैश। टॉमस मैन, उनकी शॉर्ट स्टोरी डेथ इन वेनिस। इसमें कोलेरा फैल जाता है, एक आर्टिस्ट है वो आया है, उसको छोटे लड़के से प्यार हो जाता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी एंड यू नो दैट होमोसेक्सुअलिटी हैज बीन रिप्रेजेंटेड विद अ काइंड ऑफ एपिडेमिक। सो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार आया था कि इसका एंड कहाँ होता है, तो समुद्र के किनारे पे वो लड़का बैठा है एंड ही इज ऑल्सो वॉचिंग हिम एंड देन ही डाइज। ओके, सो आपको इसको बहुत टफ तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर कम्स द रेफरेंस ऑफ गोंडोलो ऑल्सो, जिसमें वो यू नो वेनिस की जो रिवर है उसको क्रॉस करता है। सो टॉमस मैन्स डेथ इन वेनिस, उसके हीरो का नाम है गुस्ताव GUSTAV वॉन VON वॉन एशेनबैश ASCHENBACH। ओके, आपने सिटी ऑफ ग्लास का भी नाम सुना होगा, डिटेक्टिव स्टोरी का। लिखो पॉल ऑस्टियर। एक और नाम लिखो, चलो, पॉल PAUL, पॉल ऑस्टियर EAUSTER, पॉल ऑस्टियर। इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी, इसका नाम है सिटी ऑफ ग्लास। एक और नाम लिख लीजिए, अगेन इट्स अ शॉर्ट स्टोरी साइकिल। टिम ओब्रायन, एक राइटर है, टिम TIMO अपॉस्ट्रोफी टिम ओब्रायन BRIEN। टिम ओब्रायन का स्टोरी का नाम लिखो द थिंग्स दे कैरीड, द थिंग्स दे कैरीड। सो आई थिंक इट्स मोर देन 1.5 an hour। बहुत लंबी क्लास हो गई है। आई स्किप्ड मैनी थिंग्स इन दिस क्लास because it is very important to tell you the names of the writers, names of the stories. Apart from that, to explain the things also so that you can remember them. Clear? I'll upload this as a video on my YouTube after some time, so you should all re-watch it, ताकि आपकी क्लास रिपीट हो जाए, आपको ये नाम याद हो जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। जिनको भी स्टडी नए जो एडमिशन्स होना स्टार्ट हो गए हैं, स्टूडेंट्स ने ये जो दिसंबर के लिए एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो जिनको भी एडमिशन लेना है, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड यू कैन आस्क मी फॉर स्टडी मटेरियल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।